کہ عراق سے اسرائیل پر کئی ڈرونز حملے ہوئے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق حملوں کے بارے میں تفصیلات فی الحال سامنے نہیں آئی ہیں۔ کسی گروہ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ جنگی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور تازہ صورتحال یہ ہے کہ عراق سے اسرائیل پر کئی ڈرون حملے ہوئے ہیں۔ خبر میں تفصیلات فی الحال سامنے نہیں آئی ہیں اور کسی گروہ نے حملے کی ذمہ داری تاحال قبول نہیں کی ہے۔ اس سے قبل بھی ایران کی جانب سے اسرائیل پر ڈرون حملے کیے گئے اور متعدد مقامات کو نشانہ بنایا گیا، اور ابھی تازہ خبر یہ سامنے آئی ہے کہ عراق سے اسرائیل پر کئی ڈرون حملے ہوئے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق حملوں کے بارے میں تفصیلات فی الحال سامنے نہیں آئی ہیں۔ کہ عراق سے اسرائیل پر کئی ڈرونز حملے ہوئے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق حملوں کے بارے میں تفصیلات فی الحال سامنے نہیں آئی ہیں۔ کسی گروہ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ جنگی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور تازہ صورتحال یہ ہے کہ عراق سے اسرائیل پر کئی ڈرون حملے ہوئے ہیں۔ خبر میں تفصیلات فی الحال سامنے نہیں آئی ہیں اور کسی گروہ نے حملے کی ذمہ داری تاحال قبول نہیں کی ہے۔ اس سے قبل بھی ایران کی جانب سے اسرائیل پر ڈرون حملے کیے گئے اور متعدد مقامات کو نشانہ بنایا گیا، اور ابھی تازہ خبر یہ سامنے آئی ہے کہ عراق سے اسرائیل پر کئی ڈرون حملے ہوئے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق حملوں کے بارے میں تفصیلات فی الحال سامنے نہیں آئی ہیں۔ ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ، میزائلوں کی بارش کر دی۔ ایران نے اسرائیل پر کئی میزائل داغے۔ تل ابیب میں اسرائیل کے جوہری تحقیقاتی مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا اسرائیل کے خلاف وعدہ صادق سوم آپریشن جاری ہے۔ اسرائیل کے خلاف حملوں میں شدت۔ رات بھر اسرائیل کے مختلف شہروں میں ایران میزائل برساتا رہا، ہر طرف سائرنز کی گونج رہی۔ ایرانی میزائل حملوں میں اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹر ملیہ میٹ کر دیا گیا۔ اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت کے قریب آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل کا دفاعی نظام آئرن ڈوم ناکام بنا دیا گیا۔ کئی عمارتیں مکمل تباہ، 4 اسرائیلی ہلاک، 60 سے زیادہ زخمی۔ تل ابیب میں اسرائیلی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ یروشلم مقبوضہ بیت المقدس میں بھی دھماکے، بیلسٹک میزائل اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت سمیت متعدد مقامات پر گرے۔ اسرائیلیوں کی بڑی تعداد بنکروں میں جا گھسی۔ اسرائیل کے کئی علاقوں میں بجلی کا نظام درم برم رہا۔ ایران کا اسرائیل کے 2 لڑاکا طیارے مار گرانے اور خاتون پائلٹ گرفتار کرنے کا بھی دعویٰ۔ ایران نے پہلے حملے میں 100، دوسرے میں 50 اور تیسرے حملے میں تقریباً 50 میزائل داغے ہیں۔ تہران پر اسرائیلی حملے بھی جاری ہیں۔ ایرانی سرکاری ذرائع کی مہرآباد کے علاقے میں ایک بڑے دھماکے کی تصدیق۔ مشرقی تہران کے علاقوں حکیمیہ اور تہران پارس میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ، میزائلوں کی بارش کر دی۔ ایران نے اسرائیل پر کئی میزائل داغے ہیں۔ تل ابیب میں اسرائیل کے جوہری تحقیقاتی مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا اسرائیل کے خلاف وعدہ صادق سوم آپریشن بھی جاری ہے۔ اسرائیل کے خلاف حملوں میں شدت۔ رات بھر اسرائیل کے مختلف شہروں میں ایران میزائل برساتا رہا، ہر طرف سائرنز کی گونج۔ ایرانی میزائل حملوں میں اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹر ملیہ میٹ کر دیا گیا۔ اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت کے قریب آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل کا دفاعی نظام آئرن ڈوم ناکام، کئی عمارتیں مکمل تباہ، 4 اسرائیلی ہلاک، 60 سے زیادہ زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ تل ابیب میں اسرائیلی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ یروشلم اور مقبوضہ بیت المقدس میں بھی دھماکے کیے گئے ہیں۔ بیلسٹک میزائل اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت سمیت متعدد مقامات پر گرے ہیں۔ اسرائیلیوں کی بڑی تعداد بنکروں میں جا گھسی۔ اسرائیل کے کئی علاقوں میں بجلی کا نظام درم برم۔ ایران کا اسرائیل کے 2 لڑاکا طیارے مار گرانے اور خاتون پائلٹ گرفتار کرنے کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ ایران نے پہلے حملے میں 100، دوسرے میں 50 اور تیسرے حملے میں تقریباً 50 میزائل اسرائیل پر داغے ہیں۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر جوابی حملہ کیا گیا ہے، بھرپور جواب دیا گیا ہے، اور اس کا پس منظر اگر آپ کو بتاتے چلیں تو اسرائیل نے 13 جون کو 200 جنگی جہازوں کی مدد سے ایران میں 100 سے زیادہ مقامات پر حملہ کرتے ہوئے ایک نئی جنگ چھیڑ دی تھی، اور ان حملوں میں ایرانی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری، پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی اور 6 جوہری سائنسدان شہید ہو گئے تھے۔ اور اسرائیلی حکام کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان حملوں میں ایران کے جوہری عسکری مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اور دوسری جانب ایرانی میڈیا کے مطابق انہوں نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ خاتون اور بچوں سویلینز کو بھی اسرائیل نے ٹارگٹ کیا ہے، جس پر ایران کی جانب سے ایرانی سپریم لیڈر نے کہا تھا کہ ایران ہے وہ اسرائیل کو بھرپور جواب دے گا، اور ایران نے پھر اسرائیل پر جوابی حملہ کیا، میزائلوں کی بارش کر دی۔ ایران نے اسرائیل پر کئی میزائل داغے۔ تل ابیب میں اسرائیل کے جوہری تحقیقاتی مرکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا اسرائیل کے خلاف وعدہ صادق سوم آپریشن جو ہے وہ تاحال جاری ہے۔ اسرائیل کے خلاف حملوں میں
शिद्दत। रात भर इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में ईरान मिसाइल बरसाता रहा। हर तरफ सायरन्स की गूंज। ईरानी मिसाइल हमलों में इसराइली फौजी हेडक्वार्टर मलिया मेट कर दिया गया, जबकि इसराइली वजारत दिफा की इमारत के करीब आग भड़क उठी। इसराइल का दिफाई निज़ाम आयरन डोम भी नाकाम बना दिया गया। कई इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। 4 इसराइली हलाक, 60 से ज़्यादा जख्मी। तेल अवीव में इसराइली फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया गया। यरूशलेम और मकबूजा बैतुल मक़दस में भी धमाके किए गए। बैलिस्टिक मिसाइल इसराइली वजारत दिफा की इमारत समेत मुतअद्दिद मुकामात पर गिरे हैं। इसराइलियों की बड़ी तादाद बंकरों में जा घुसी है। इसराइल के कई इलाकों में बिजली का निज़ाम दरम बरम रहा। ईरान का इसराइल के 2 लड़ाका तैयारे मार गिराने और खातून पायलट गिरफ्तार करने का दावा भी सामने आया है। ईरान ने अपने पहले हमले में 100, जबकि दूसरे में 50 और तीसरे हमले में तकरीबन 50 मिसाइल इसराइल पर दागे हैं, जबकि तेहरान पर इसराइली हमले भी जारी हैं। ईरानी सरकारी ज़राए की मोहराबाद के इलाके में एक बड़े धमाके की तस्दीक सामने आई है। मशरकी तेहरान के इलाकों हकीमिया और तेहरान पारिस में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। तो आपको बताते चलें कि ईरान की जानिब से इसराइल पर जवाबी हमला किया गया है, मिसाइलों की बारिश कर दी है। ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइल दागे हैं। तेल अवीव में इसराइल के जोहरी तहकीकाती मरकज़ को निशाना बनाया गया है। ईरान का इसराइल के खिलाफ वादा सादिक सोम ऑपरेशन जारी है। इसराइल के खिलाफ हमलों में शिद्दत। रात भर इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में ईरान मिसाइल बरसाता रहा है। हर तरफ सायरन्स की गूंज। ईरानी मिसाइल हमलों में इसराइली फौजी हेडक्वार्टर मलिया मेट कर दिया गया। इसराइली वजारत दिफा की इमारत के करीब आग भड़क उठी। इसराइल का दिफाई निज़ाम आयरन डोम नाकाम बना दिया गया। कई इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई, जबकि 4 इसराइली हलाक और 60 से ज़्यादा जख्मी भी हुए। तेल अवीव में इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। यरूशलेम मकबूजा बैतुल मक़दस में भी धमाके हुए। बैलिस्टिक मिसाइल इसराइली वजारत दिफा की इमारत समेत मुतअद्दिद मुकामात पर गिरे। इसराइलियों की बड़ी तादाद बंकरों में जा घुसी। इसराइल के कई इलाकों में बिजली का निज़ाम दरम बरम हो गया। ईरान के इसराइल के 2 लड़ाका तैयारे मार गिराने और खातून पायलट को गिरफ्तार करने का दावा भी सामने आया है। ईरान ने पहले हमले में 100, दूसरे में 50 और तीसरे हमले में तकरीबन 50 मिसाइल इसराइल पर दागे हैं, जबकि तेहरान पर इसराइली हमले भी जारी हैं। सूरत हाल कशीदा है और इसराइल का भी रिस्पॉन्स जारी है, जबकि ईरान की जानिब से जिस तरह से जवाब का इंतज़ार किया जा रहा था और इसराइली जारियत के बाद ईरान ने जिस तरह से कहा था कि हमारा रिस्पॉन्स आएगा, तो ईरान ने अपना रिस्पॉन्स दिया। दुनिया ने देखा। ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला किया, मिसाइलों की बारिश कर दी। ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइल दागे हैं। तेल अवीव में इसराइल के जोहरी तहकीकाती मरकज़ को भी निशाना बनाया गया। ईरान का इसराइल के खिलाफ वादा सादिक सोम ऑपरेशन जो है वो भी जारी है। इसराइल के खिलाफ हमलों में शिद्दत। रात भर इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में ईरान मिसाइल बरसाता रहा। हर तरफ सायरन्स की गूंज थी। ईरानी मिसाइल हमलों में इसराइली फौजी हेडक्वार्टर को मलिया मेट कर दिया गया। इसराइली वजारत दिफा की इमारत के करीब आग भड़क उठी। इसराइल का दिफाई निज़ाम आयरन डोम नाकाम बना दिया गया। कई इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। 4 इसराइली हलाक हुए, 60 से ज़्यादा जख्मी होने की इत्तला मिली। तेल अवीव में इसराइली फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया गया है। यरूशलेम मकबूजा बैतुल मक़दस में भी धमाके। बैलिस्टिक मिसाइल इसराइली वजारत दिफा की इमारत समेत मुतअद्दिद मुकामात पर गिरे हैं। इसराइलियों की बड़ी तादाद बंकरों में जा घुसी। इसराइल के कई इलाकों में बिजली का निज़ाम भी दरम बरम रहा। ईरान के इसराइल के 2 लड़ाका तैयारे मार गिराने और खातून पायलट को गिरफ्तार करने का दावा भी सामने आया है। ईरान ने अपने पहले हमले में 100, जबकि दूसरे में 50 और तीसरे हमले में तकरीबन 50 मिसाइल दागे हैं और तेहरान पर इसराइली हमले भी जारी हैं। ईरानी सरकारी ज़राए की मोहराबाद के इलाके में एक बड़े धमाके की तस्दीक हुई है और मशरकी तेहरान के इलाकों हकीमिया और तेहरान पारिस में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। चौधरी साहब, ईरान ने जो रिस्पॉन्स दिया है और आयरन डोम को जिस तरह से नाकाम बनाया है, डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान की स्ट्रेंथ को किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, ईरान का जवाब जो है बहुत मौसर तरीके से सामने आया है। जिससे कोशिश की जा रही थी, मैं समझता हूँ उससे कुछ बढ़कर ही आया। इसमें हमने देखा है कि जो तस्वीर हमें मसूल हुई हैं, जो इसराइल के जो पोजीशन है वो वजह की है, और इसी तरह का जवाब उनको दिया जाना चाहिए था, क्योंकि इसराइल ने जो जुल्म जबर की तारीफ रकम की है उसकी तो मिसाल नहीं मिलती। और ये भी प्रूव किया जा रहा है, बल्कि इस बात के कुछ शवाहद सामने आ रहे हैं कि इसराइल की जो दिफाई तनसीबात हैं, जिसमें उनके जोहरी तनसीबात भी शामिल हैं, उनको भी किया गया है। वज़ारत दिफा के दफ्तर को तो हिट करने की खबरात ही आ गई थी। इसके बाद ये इतलात भी हैं कि 2 प्यारे जो तेहरान के अंदर
ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे वो मार गिराए गए हैं, और एक पायलट, खातून पायलट को गिरफ्तार कर ली गई है। तो और ये मैं समझता हूँ कि पूरे इसराइल का निज़ाम जो है दरम भरम है, इस वक्त वहाँ बिजली भी नहीं है और एक क्लास का आलम है। और आज इसराइल को पता लगा होगा बैलेंस करनी पहुँच के किसी मजलूम कौम पर जो हमले किए जाते हैं तो वहाँ कैसे शुरुआत पैदा होती है। ये बहुत जरूरी है, और ईरान के लिए दूसरी भी जरूरी है कि ईरान की जो टॉप ब्रास को शहीद किया गया है, और उसके बाद ये जो लोग कह रहे हैं जंग छिड़ गई है, ये हो गया कि जंग से बहुत आगे का मामला है। ये तो वार ऑफ सर्वाइवल है, इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो पहला ईरान की जानब से रिस्पॉन्स सामने आया है, यकीनन ये हमले जारी रहेंगे। ये बड़ा मौसर रहा और उसमें आयरन डोम भी काम नहीं कर सका। देखें जो दावा किया जा रहा था कि इंटरसेप्ट करेंगे, बल्कि रात अमरीकी काम की जानब से भी ये बयान सामने आया था कि हम इसराइल के साथ मिलकर सजा में ईरानी मिसाइलों को नकारा बना रहे हैं। तो वो दावा भी बाकी साबित हुआ, और बहुत सारे मिसाइल जो हैं वो इसराइल के अंदर लैंड कर गए हैं, और जिसके नतीजे में आज इसराइल में इंतहाई खौफ और रात की सजा है, और लोग जो हैं काफी नौकरों के अंदर जा चुके हैं। तो इसराइली फौज भी यही ऐलान कर रही है, थोड़ी देर पहले उन्होंने ऐलान किया है कि हम पर पूरा ट्रस्ट न करें, ये सारे के सारे जो मिसाइल हैं ये रोकना मुमकिन नहीं। आयरन डोम जो है ये 100% नतीजे नहीं दे पा रहा, तो अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम करें। तो ज़ाहिर है ये एक बेबसी की कैफियत भी है, और इससे अंदाजा होता है कि ईरानी हमले में बहुत ज़्यादा शिद्दत है, ये होनी भी चाहिए। चलिए बुखारी साहब, एक हम देख रहे थे इसराइल और ईरान को कंपैरेटिवली मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। ऐसे लग रहा था कि लो टेक मिलिट्री और वर्सेस हाई टेक मिलिट्री था, लेकिन जिस तरह से इसराइली डिफेंस डोम को नाकाम बनाया है ईरान ने, इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, पहली बात तो यह है कि नवीद चौधरी साहब ने काफी सूरत हाल को सम अप कर दिया है। जो कुछ बाकी कहा जा सकता है वो मैं कह देता हूँ। सूरत हाल ये है कि जो जंग का पैटर्न है उसको अगर हम अभी हालिया जंग जो पाकिस्तान और भारत की हुई थी उसको इक्वेट करके देखें तो सूरत हाल में बहुत सी मुमासलत है। जिस तरह हिंदुस्तान का मीडिया जो है वो झूठ बोल बोल के और वहाँ की हुकूमत झूठ बोल बोल के अपनी रेपुटेशन बचाने की कोशिश कर रही थी, इसी तरह से इसराइल के साथ भी हो रहा है। उनका ख्याल ये था कि ये वो फ्री पैसेज होगी, ईरान को सबक सिखा के और आराम से वो मार्च करते हुए वापस चले जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ है। ईरान की तरफ से जो हमारी तरफ से कहा गया था कि वेट वी विल कम, इसी तरह से उन्होंने भी किया है कि हम, जब उन्होंने अली खamenei साहब ने कहा कि अब हम आपको सजा देंगे, उसके बाद जो अमल शुरू हुआ है वो अब तक जारी है। यानी तल अवीव में इस तरह से मिसाइलों की बारिश होगी ये कोई सोच भी नहीं सकता था। वो जो आयरन डोम की मिथ थी उसका जिस तरह से भुरकस बनाया है वो काबिल दिल था, इसलिए कि टीवी की स्क्रीनों के ऊपर लाइव कवरेज चलती रही है जिसमें सायरन तो वो बजते रहे तसलसल के साथ। तल अवीव में लोग जो है वो बंकर में छुपे हुए हैं, जिंदगी उनकी अजाब है। जिस तरीके से मिसाइलों की बारिश हुई है और रॉकेट्स की बारिश हुई है, और अभी तो इसमें और बढ़ावा आ रहा है। अभी तो यमन की तरफ से वो कॉरिडोर बंद किया जाएगा जो बहरी तिजारत हो रही है। अभी तो वहां से मिसाइलों की बारिश वहां से भी होनी है। अभी तो जो अली खamenei कह रहे हैं या ईरानी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है कि आपको हम सबक पढ़ा के छोड़ेंगे, उसके ऊपर अमल दरामद शुरू है और सारी खुली आंखें देख रही हैं। बिल्कुल, उस पर अमल दरामद भी शुरू है और जवाब भी हमने ईरान का देख लिया है।